Hello, everybody. I hope you all are doing absolutely well. Now, in this particular session, we shall be doing this is basically for the law aspirants, and we shall be doing a comprehension, right? Which is not just based upon current affairs, but it is a GACA comprehension. All right, it is a GACA comprehension for this particular year that we'll be doing. Now, why these comprehensions are important, let's understand that. And before understanding, let me once again welcome you all to Pratham Test Prep. Now, these comprehensions are basically designed for CLAT paper. Okay, so these we have designed for the CLAT exams, and this is how passages are asked in the CLAT paper. Now, there would be total 5 passages, right, that we'll be discussing today. And in those 5 passages, we'll be covering 30 multiple choice questions, like what you get in the GK section of CLAT exams. 5 passages, 6 passages, 30 questions. This is what the standard of the paper looks like, right? Now, if you look at it clearly, we have 5 passages that cover women's reservation and constitutional amendments. That is the first passage that we do. The second passage that we do is about the Artemis mission of NASA, right? So NASA's Artemis second mission. Third passage is about OPEC member nations and UAE's exit from OPEC. This is the third passage. The fourth one is about BRICS 2026 that India would be hosting. And the fifth passage is about the UCC bill implemented in the state of Gujarat. Okay, so there will be 5 passages, 30 MCQ questions from each passage. Now, what and how we'll do is, now look at this first passage right here. It is a passage from the Indian Express. Okay, so this is a passage that we have extracted from the Indian Express, which is about the reservation bill for women in the parliament. It was all over the news. We all know about it, right? Now, if you see the passage here, we have given the source of the passage as well. ये Indian Express से है आपका, and ये वो लिंक है पैसेज का, आप देख सकते हैं. यहाँ से वो पैसेज जो है आपका लिया गया है. Now, अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, typically what a student would do is, a student जैसे ही CLAT का पेपर आता है सामने या मॉक आप देते हो, the first thing that a child starts doing is reading the passage. Obviously, passage पढ़ना शुरू करते हैं. This is the first thing that a child starts doing. Now, if you read the passage, I'll start reading out the passage for you all. It says that on Friday, Lok Sabha defeated a constitutional amendment bill to raise the share of women in India's elected legislatures to 33% of their total respective seats. Legislatures, elected legislatures की बात हो रही है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बात हो रही है लोकसभा की एंड कहाँ की? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, राइट? इन दोनों की यहाँ पर बात हो रही है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. It says that an analysis of the past number shows that in terms of representation, the share of women has barely reached a 15% mark across legislatures. Parliament trends on women representation in Lok Sabha, which is the lower house of the parliament, the figure has never exceeded even that. Okay, it says that from the first Lok Sabha ka 1951-52, when there were 24 women MPs out of 489, matlab 4.9%, right? To the 18th Lok Sabha आपकी 2024 से 2029 तक रहेगी, stands at 75 out of 543 seats, मतलब कितना परसेंट? 13.6%. आप इंडिपेंडेंस से देखो हमने कितना ग्रो करा है.
from 4.9% to 13.6% की ग्रोथ मिली है केवल सीट्स में फॉर वुमेन व्हेन इट कम्स टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन. द हाईएस्ट फिगर इन दिस रिगार्ड वाज इन द प्रीवियस लोकसभा 2019-24 की जो थी, वहां पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन वाज 14.36%, मतलब 78 आउट ऑफ 543 the 78 were women amongst when we say that the entire membership of the house. Okay, हाईएस्ट कौन से लोकसभा में थी आपकी देखी गई? हाईएस्ट जो आपका देखने को मिला was in the 17th लोकसभा which is 2019 to 2024. Okay, now lowest figure कब देखने को मिला? 3.5% came during the 6th लोकसभा. हाईएस्ट था कब? 17th में. लोवेस्ट कब है? कौन सी लोकसभा में मिला आपका? 6 लोकसभा में मिला, जो 1979 77 to 79 तक आपकी चली. और पहली बार द 1977 जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड आफ्टर इमरजेंसी. इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगवाई थी उसके बाद जो आपके जनरल इलेक्शंस हुए, तब ये सबसे लोवेस्ट देखने को मिला. इंदिरा गांधी, India's first woman prime minister to date, lost the election after 11 years at the held Rajya Sabha. While not a legislative body whose members are directly elected by the people, presently has 39 women MPs out of a total 245, about 16%. ये आपका पूरा पैसेज है, ठीक है. इस पैसेज में आपको क्या समझने को मिला? इस पैसेज में विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, और यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो हाईएस्ट नंबर आया विमेन रिप्रेजेंटेशन हुआ इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द लोकसभा वाज इन द 17th लोकसभा, जो आपकी 2019 से 2024 तक आपकी रही. लोएस्ट आपका 6 लोकसभा में रहा. ये वो टाइम है इमरजेंसी के जस्ट बाद वाला, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज की थी, उसके बाद जो आपका टेन्योर था वहां पे लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है. सो अगर हम इंडिपेंडेंस से या फर्स्ट लोकसभा सेशन से 18 सेशन तक देखते हैं, सो देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 13.6% फ्रॉम 4.9%. दिस इज द इंक्रीज दैट इज सीन. ये आपका पैसेज है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा. अब इस आर्टिकल के अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ, पहला क्वेश्चन जो आर्टिकल का है वो कहता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑपरेशनलाइज व्हाट, राइट? क्वेश्चन नंबर 1, टू ऑपरेशनलाइज व्हाट. अब इसमें ज्यादातर बच्चे जो मार्क करते हैं वो क्या मार्क करते हैं? आपके ऑप्शन सी मार्क कर देते हैं कि 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन ओनली इन द लोकसभा. बट अगर आप पीछे जाके देखें, जो मैंने हाईलाइट भी किया था, इन इंडियाज इलेक्टेड लेजिस्लेचर, जिसमें आपकी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों आती हैं, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, दैट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सो दैट वाज व्हाट, दैट वाज हाईलाइटेड, that was introduced, मतलब ensuring that 1/3 seats जो होंगी वो क्या होंगी? आपकी रिजर्व होंगी फॉर विमेन, नॉट जस्ट इन लोकसभा बट ऑल्सो द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन. नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, 50% रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं हुई है. सो बी और सी ऑटोमेटिकली आप डिडक्ट कर, बी और डी ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे. बात बचती है ऑप्शन ए या सी की, जहां पे 33% आपको दिख रहा है, बट सिर्फ लोकसभा में नहीं, इट इज इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे डिस्कस करता है कि इंडिया की ग्लोबल पोजीशन क्या है व्हेन इट कम्स टू विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा. ओके, लोकसभा में इंडिया में विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है, रैंक वाइज हम कौन से नंबर पर हैं? सो रैंक वाइज ये किसने रिलीज करा? ये रिलीज करा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने, कि इंडिया स्टैंड्स एट 147th पोजीशन. हमारी पोजीशन 147th है.
in the world. So we hover around 147, 148. But since हमारा roughly 14 to 15% of representation of women है, so we hover at 147, 148 position. अगर यहाँ 148 भी लिखा होता, you could have marked that as the right answer. But since 147 है, that would be the best answer to mark here. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि the Constitution 131st Amendment Bill 2026 proposes what? उसने ये तो प्रपोज करा कि 33% रिजर्वेशन होगा, बट उसके साथ साथ there was also a proposal for increasing the total number of seats या maximum strength को increase करने के लिए from 550 to how much? To 850 members. Option C is the right answer. कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की होनी चाहिए वो आपके 850 मेंबर्स जो है वो होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन जब 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड हुए थे, तब से मैसिवली चेंज हो चुकी है. वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो ये भी आपकी 550 से 850 आपकी होनी चाहिए अबाउट द स्ट्रेंथ. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which constitutional provision deals with delimitation in India? अब बात आती है delimitation की. ये delimitation कौन सा आर्टिकल आपका डील करता है with the delimitation process? Delimitation is basically redrawing the boundaries, right? So ये आपका या फिर readjustment of the seats, ये आपका करता है आर्टिकल 82. तो आपका बोलता है कि स्टेट की आपकी लोकसभा में जो सीट्स हैं उनको आपको क्या करना है? चेंज करना है, रीड्रॉ करना है, वापस से देखना है आफ्टर ईच सेंसस. सो आर्टिकल 82 क्या बोलता है? हर सेंसस के बाद हमें क्या करना है? हमें हमारी सीट्स को रीएलोकेट करना है इन द लोकसभा. और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में मेंशन है इन आर्टिकल 170 कि रीएडजस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, डिलिमिटेशन is important, right? Readjusting of seats in this context. Okay, now when it comes to the census, right? अब बहुत टाइम बाद इंडिया में सेंसस हो रहा है, ठीक है? कुछ चीजें सेंसस के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, राइट? बहुत टाइम आपके बाद सेंसस हो रहा है. सेंसस इस बार हो रहा है आपका 2 फेजेस में, ठीक है? एक है आपका फेज 1 और दूसरा है आपका फेज 2. 2 फेजेस में सेंसस है. ये सेंसस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो सेंसस है दिस इज डिजिटल सेंसस. ये एक डिजिटल सेंसस है, 2 फेज में हो रहा है. फेज 1 किस बारे में है? फेज 1 इज द हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन. फेज 1 आपका हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस है विच इज HLO, राइट? फेज 2 किस बारे में है? फेज 2 इज बेसिकली पॉपुलेशन एन्यूमरेशन. पॉपुलेशन एन्यूमरेशन आपका फेज 2 का पार्ट होगा. ये पॉपुलेशन के बारे में फेज 2 में आपको बताया जाएगा. अभी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, मतलब कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, राइट? डू दे हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी और नॉट? सो दीज आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट ने जो क्वेश्चन निकाला है उसमें दिया हुआ है. आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि सेंसस कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट कराती है? सो इट इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, right? डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, बट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो आपके उसके यूनियन मिनिस्टर के बारे में भी पता होना चाहिए. ये फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस आपका, ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस आपका इंडिया का है. आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहला सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुआ था? 1881 में क्या था, राइट? क्वेश्चंस लाइक दीज कैन बी आस्क्ड. सो ये आपका डिलिमिटेशन या फिर रीएडजस्टिंग द सीट्स लोकसभा में करनी चाहिए आफ्टर एवरी सेंसस इज रिटन इन आर्टिकल 82. और राज्यसभा और आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसका लिखा है इन आर्टिकल 170. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. चलिए
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो ये कहता है कि द विमेन रिजर्वेशन बिल विच इज नोन एज द नारी शक्ति वंदन अधिनियम failed to pass the Lok Sabha in April 2026 because of what? ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन कहता है it did not secure the 2/3 of the majority which is required. Okay, we can keep this as one of the options. सेकेंड कहता है डिड नॉट सिक्योर द रिक्वायर्ड 1/3 मेजोरिटी, तो बिल्कुल भी नहीं है, 2/3 मेजोरिटी की चाहिए होती है. थर्ड, इट वाज रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा. नो, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. फोर्थ इज द प्रेसिडेंट withheld the assent, right? This is also incorrect because the president receives the bill जब दोनों हाउसेस उसे पास कर देते हैं. सो ऑप्शन डी तो आपका हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट कब आपका प्रेसिडेंट के पास बिल आता है, कब है? जब दोनों हाउसेस उसको अप्रूव कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो आता है. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट, आपका पास करने के लिए एक मेजोरिटी चाहिए होती है विच इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी. मतलब आपकी 2/3 मेजोरिटी जो है ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट देयर एंड हु आर वोटिंग, वो आपकी होनी जरूरी है. स्पेशल मेजोरिटी कोई भी बिल पास करने के लिए चाहिए होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, विच इज व्हाट? ऑप्शन ए. सो ऑप्शन बी, सी, डी सब गलत है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अ स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड. और वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. यहाँ पर आपका इस बिल को पास करने के लिए 2/3 मेंबर्स की जो प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई. therefore the bill did not pass. Okay, now question number 6 says the women reservation bill is expected to be implemented from which Lok Sabha elections year? अगले लोक सभा इलेक्शन आपके कब होंगे? 2029 में होंगे. तो वो आपका राइट आंसर हो गया. 2024 हो नहीं सकता. 2026 में तो अभी फेल हो गया, तो ए और बी वैसे नहीं होगा. 2034 इज और आगे का है, सो नो, इट इज 2029, राइट? दैट इज द फुल टारगेट. ऑलराइट, चलिए अगला जो आपका पैसेज है, दैट पैसेज इज अबाउट नासा's आर्टेमिस सेकेंड मिशन. अब इसमें भी आपके क्या है? इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, राइट? नासा का आर्टेमिस मिशन के बारे में है. पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि नासा की फुल फॉर्म क्या है. नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. National Aeronautics and Space Administration is what the full form of NASA is. It is in US, Washington DC. ठीक है. अब नासा का आर्टेमिस मिशन है. आर्टेमिस मिशन किसका है? इट इज अ लूनर मिशन, मतलब मून का मिशन है ये आपका. ठीक है. एंड क्रू में कौन कौन है? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्रू इंक्लूड रीड वाइजमैन एंड विक्टर ग्लोवर, राइट? सो ये है 4 एस्ट्रोनॉट्स. ठीक है. एंड इन दो के नाम यहाँ पे गिवन है आपको. अगर आप पैसेज पढ़ोगे भी, यू विल रिसीव सम इंफॉर्मेशन, यू विल गेट सम डेटा, बट नॉट नेसेसरीली कि आपको उस डेटा से क्वेश्चन आए, है ना? जो आपने पहला पैसेज करा, हमने बहुत सारा डेटा देखा पैसेज में, बट क्या उस डेटा से क्वेश्चंस थे फॉलोइंग उस पैसेज के? नो, राइट? सो इट्स बेटर कि आप पैसेज पढ़कर उसका एक आइडिया ले लो, राइट? लेकिन बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि आप अगर पूरा पैसेज पढ़ोगे, इट विल बी काइंड ऑफ लाइक डिवोटिंग टू मच ऑफ टाइम इन समथिंग विच इज नॉट वेरी मच अ नेसेसिटी, आई वुड से, राइट? क्योंकि क्वेश्चंस तो आपकी रिलेटेड है ही नहीं इससे. चलिए, आपको पैसेज समझ आ गया किस बारे में है. अब पैसेज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है कि जो नासा का आर्टेमिस मिशन है वो कौन सी लोकेशन से लॉन्च हुआ. ठीक है. अब अगर आपको आर्टेमिस फर्स्ट के बारे में पता है तो आप इजीली मेंशन कर सकते हो इसको, बट इट वाज लॉन्च फ्रॉम
द नासा का केनेडी स्पेस स्टेशन इन फ्लोरिडा, यूएस, वहां से आपका लॉन्च हुआ एंड इट वाज लॉन्च ऑन द सेम पैड जहां से आपका आर्टेमिस 1 मिशन वाज लॉन्च, कॉम्प्लेक्स 39B। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट्स इज अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस सेकंड क्रू। अब आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो बेटा, सुनीता विलियम्स है, क्रिस्टीना कोच है, कल्पना चावला है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप पैसेज ही ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकते बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून एंड प्रोबेबली, अगर आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पता भी नहीं है, आपको इतना आइडिया होगा दैट ही इज नो मोर, ही इज नॉट अलाइव बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून बहुत पहले, राइट। सो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखोगे, कल्पना चावला। नाउ कल्पना चावला ऑल्सो पास्ड अवे व्हाइल she was coming back from space in the year 2003. So Kalpana Chawla passed away in 2003. Neil Armstrong passed away in 2012. ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं which is सुनीता विलियम्स एंड क्रिस्टीना कोच। अगर आप ए बी सी डी में से चार ऑप्शंस में से दो भी एलिमिनेट कर पाए हो, दैट मीन्स आपका 50% चांस क्वेश्चन करेक्ट होने का हो गया है, राइट। योर क्वेश्चन वुड बी, आंसर वुड बी करेक्ट। अब आपका ऑप्शन या तो सुनीता विलियम्स होगा या क्रिस्टीना कोच होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैक ट्रैक करोगे, थोड़ा सा आप सोचोगे, सुनीता विलियम्स जो है वो अभी काफी कुछ टाइम पहले, काफी दिनों तक शी वाज इन स्पेस, राइट। और अगर आपने देखा होगा दैट वो स्पेस से मैसेजेस भेज रही थी, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या सुनीता विलियम्स एसोसिएटेड है आर्टेमिस मिशन से, सो द आंसर इज नो बिकॉज शी इज नॉट एसोसिएटेड। आपका राइट आंसर, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचकर एक एजुकेटेड गेस लेंगे तो क्रिस्टीना कोच वुड बी द आंसर इधर स्ट्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टेमिस मिशन इज इनकरेक्ट। अब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन, आर्टेमिस सेकंड इज द फर्स्ट क्रूड मिशन ऑफ द आर्टेमिस प्रोग्राम। फर्स्ट क्रूड मिशन है, मतलब एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, है ना। अभी हमने देखा, वो तो पैसेज में ही लिखा हुआ है, वाइजमैन एंड कई लोग जा रहे हैं, है ना, एस्ट्रोनॉट्स। सो फर्स्ट क्रूड मिशन है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, मतलब ये तो इनकरेक्ट नहीं है। दूसरा कहता है, इट मार्क्स द फर्स्ट ह्यूमन जर्नी नियर द मून सिंस अपोलो 17 in 1972। ओके, पहले बार अब ह्यूमंस जा रहे हैं मून पर अपोलो 17 के बाद 1972 के मिशन के बाद। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन जर्नी, ह्यूमंस तो है, चलो ठीक है, ये भी हम रख लेते हैं। क्रिस्टीना कोच विल बिकम फर्स्ट वुमेन टू ट्रैवल टू मून्स विसिनिटी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्रिस्टीना कोच का आंसर मार्क करा है, और अगर आप बाय चांस लास्ट क्वेश्चन छोड़ भी देते हो और अगर आप अगले वाले इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्रिस्टीना कोच का नाम इधर है, तो आप कनेक्ट करके देखो कि मे बी क्रिस्टीना कोच राइट आंसर हो सकता है ना, पिछले क्वेश्चन का। तो चलिए ये भी राइट है। द 4 crew member will land on the moon during the mission। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट पार्शली करेक्ट है, 4 crew member वाली बात जो है वो बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे ये चीज देखो, will land on the moon during the mission। अब क्या ये मून पर लैंड करेंगे या फिर मून के अराउंड ऑर्बिट करेंगे, ये आपका थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि जहां पर एक वो डाउट उसने डाल दिया कि 4 क्रू मेंबर है और वो चारों के चारों मून पे लैंड करें, है ना, थोड़ा सा डाउट डाला उसने यहाँ पे। सो ये अगर आप एक एजुकेटेड गेस मार के देखो तो ये ऑप्शन आपको लगेगा कि मे बी ये इनकरेक्ट हो, राइट। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो क्रू है विल ऑर्बिट अराउंड द मून एंड विल टेस्ट द ओरायन स्पेसक्राफ्ट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ। की मतलब अगर बाय चांस, सो इस मिशन की स्पेशलिटी ये है कि बाय चांस अगर कुछ फेलियर हो भी जाता है, सो मून का जो ग्रेविटी है वो एक स्लिंगशॉट की तरह पुश करेगा स्पेसक्राफ्ट को, दैट इट वुड रिटर्न बैक टू अर्थ। सो ये एक फ्री फॉल ट्रेजेक्टरी करके उन्होंने एक टर्म दी है इसको। सो उस चीज को ये टेस्ट करे है, राइट।
एंड यहाँ पर आपको पता चल गया क्या ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट पूछा है, सो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर ओवर हियर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, जो मैं आपको बोल रही थी फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है। अब आप ऑप्शन देखिए, अ पाथ दैट अलाउज द स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट मास एंड रिटर्न। अब यहां पर बात किसकी हो रही है, हमारी मून की बात हो रही है। ठीक है, अगर मून से फिर कहां पर, चलो अर्थ पर वापस आना है, अर्थ से जा रहे हैं तो मून और अर्थ इधर आ गया। क्या अभी तक हमने मास की बात करी है? बिल्कुल नहीं करी है। सो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन ए, बिकॉज मार्स समझ नहीं आ रहा, राइट। अगला ऑप्शन देखते हैं कि फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री क्या है, अ ट्रेजेक्ट्री दैट यूजेस मून्स ग्रेविटी टू रिटर्न द स्पेसक्राफ्ट सेफली टू अर्थ। चलो अब इसमें ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर है, ठीक है, एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री की ही बात हुई है, एक ऐसे रूट की ही बात हुई है। क्या मून की बात हो रही है? हाँ जी, मून की बात हो रही है। आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो मून का मिशन है, लूनर मिशन है। क्या अर्थ पर वापस आने का पूरा उनका चांस है? क्रूड मिशन है, ऑफ कोर्स आएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। एज सच उसका कोई यू नो एसोसिएशन उतना नहीं बन रहा है यहाँ पे इस ऑप्शन में। अगला तो ये हम पास नहीं रख सकते कि मे भी हो सकता है ये करेक्ट हो, बट लेट्स सी दी अदर ऑप्शंस। बाकी ऑप्शन कहते हैं a route used for docking with international space station। कुछ खास मतलब बन नहीं रहा है इसका। फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्ट लैंडिंग पाथ ऑन द मून। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो ऑर्बिट अराउंड, हम तो ऑर्बिट करेंगे, राइट, नॉट लैंड ऑन मून। मून पर लैंड तो नहीं किया जाएगा, ऑर्बिट ही होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने दो ऑप्शंस कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए, ए और डी, और सी भी कुछ करेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सो सी भी आप एलिमिनेट कर दो। बचा कौन सा? ऑप्शन बी आपका बचा कि ये ट्रेजेक्ट्री क्या है कि इफ द स्पेसक्राफ्ट इंजन फेल्स, मून जो है वो उसको वापस अर्थ पर भेज देगा यूजिंग इट्स ओन ग्रेविटी नेचुरली, राइट, लाइक अ स्लिंग शॉट। इट विल सेंड इट बैक टू अर्थ, जैसे वो गुलेल होती है, इट विल सेंड इट बैक टू अर्थ, right, into the earth's atmosphere. So option C, option B here is correct। ठीक है, और सिंपल सी बात है बेटा, मार्स की बात तो हो ही नहीं रही, लूनर मिशन है, मून की बात है, तो ऑप्शन ए वैसे करेक्ट नहीं हो सकता। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आर्टेमिस सेकंड, जो आर्टेमिस सेकंड क्रिएटेड हिस्ट्री बाय ट्रैवलिंग अप्रोक्सीमेटली हाउ फार फ्रॉम अर्थ। अब ये जो सवाल है ये आप बहुत टेक्निकल सवाल है, आप इसमें एलिमिनेशन आप उतना बेटर वे में शायद यूज ना कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं पता आप एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं, बट हियर एज यू कैन सी इन द एक्सप्लेनेशन द राइट आंसर इज 252,756 miles which is 4,06,771 kilometers। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, which Apollo mission was the last mission to travel to the moon's vicinity before Artemis II। ठीक है, अब आप अगर पीछे कुछ क्वेश्चंस पे जाओगे और उनके ऑप्शंस देखोगे, मैं गई क्वेश्चन नंबर 9 पर। It marks the first human journey near the moon since Apollo 17 in 1972। ये वाला ऑप्शन आप देखो ध्यान से, ये ऑप्शन हमने अभी किया है। कई बार ऑप्शंस में आपको हिंट मिल जाती है, अगले फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर आपको थ्रू ऑप्शंस मिल जाता है, ऑप्शन से आप थोड़ा और बेटर डिकोड कर सकते हो पैसेज को, राइट। देखो अपोलो 17 1972, हो सकता है आपको ये पता भी ना हो, बट ये ऑप्शन में है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कहते हैं क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा अपोलो मिशन था लास्ट जो कि मून के विसिनिटी में गया बिफोर आर्टेमिस सेकंड। इन चारों में आपको, अगर आपको नहीं भी पता कौन सा ऑप्शन आप को रिलेट कर सकते हो विद दैट क्वेश्चन नंबर 9, वो है आपका ऑप्शन डी अपोलो 17 इन द ईयर 1972।
क्या आप इसे कनेक्ट कर सकते हो? और यही आपका राइट आंसर है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। थोड़ा सा ओपन दिमाग, थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे, इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, अपोलो 11 जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज अपोलो 11 हुआ था आपका 1969 में, और उसके बाद भी आपका क्या हुआ था? अपोलो 17 1972 में गया था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा पैसेज नंबर 3। अब ये जो पैसेज नंबर 3 है वो है आपका यूएई, कुवैत, ओपेक। यहां पर आपको ओपेक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है? ओपेक स्टैंड्स फॉर, टेल मी, ऑयल एंड पेट्रोलियम exporting countries. So it's a group of countries जो आपकी ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, अब यूएई जो है उसने क्या किया? उसने एग्जिट ले ली, राइट, फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस। ओपेक प्लस इज एन एक्सटेंशन and dealing a heavy blow to oil exporting groups and their de facto leader. Leader कौन? Saudi Arabia. By the time when Iran US Israel war, ये सब चल रहे हैं। ठीक है, आपको जिस समझ आया। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। What does OPEC stands for? लो, बहुत आसान है। What does OPEC stands for? अभी बताया था, which is Organization of Petroleum Export Countries, Organization of Petroleum Exporting Countries, Oil Producing and Exporting Countries, Organization of Petroleum and Energy Corporation. So क्या आंसर है? It is Organization of Petroleum Exporting Countries. अब आपको अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन यहाँ पर है, हमने यहाँ पे लिखा है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशंस, राइट? इट इज नॉट ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशंस। ज्यादातर बच्चे करेंगे। क्या है आंसर इसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, सो द आंसर फुल फॉर्म इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये आपका बेसिक फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए, सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का फुल फॉर्म, ओपेक प्लस इज एन एक्सटेंशन। आपको आंसर पता चल गया। क्या है आंसर? इट इज एन परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग्स इट्स मेंबर नेशंस। और किसने एग्जिट कर दिया? यूएई ने। अब आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ओपेक के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ज्यादातर बच्चे क्या मार्क करते हैं कि मे बी किसी मेंबर नेशन में होगा, सऊदी अरेबिया में होगा। हेडक्वार्टर्स एक न्यूट्रल हेडक्वार्टर्स रखे हैं विच इज इन वियना, ऑस्ट्रिया। न्यूट्रल हेडक्वार्टर्स रखे हैं कि ऐसा ना हो कि हेडक्वार्टर्स उसी कंट्री में आ जाए जो मेंबर नेशन है। नो, सो दे हैव केप्ट अ न्यूट्रल हेडक्वार्टर इन वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि OPEC countries collectively produce approximately what share of world's crude oil? अब हमें ऐसा लगता है कि 60% होगा, 85% होगा, बट एक्चुअली क्या इतना है? नहीं, इट इज रफली 35 to 40%, right? 35 to 40%. And there are non-OPEC producers like US also जहां से आ रहा है, but OPEC nations 35 to 40% करते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। In which year OPEC was founded? So OPEC was founded in the year 1960. OPEC was founded, established in 1960. कौन सी कॉन्फ्रेंस? बगदाद कॉन्फ्रेंस की टाइम पर। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फॉर्मली started the functioning या operationalize कब से हुआ? functioning in 1961 से फॉर्मली उन्होंने शुरू कर दी अपनी फंक्शनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which of the following countries was not the founding member of OPEC? फाउंडिंग मेंबर ऑफ OPEC नहीं था।
सो ओपेक के 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे आपके, कौन कौन से? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं है? यूएई ने ज्वाइन नहीं करा था, यूएई ने बाद में ज्वाइन करा था, सो यूएई वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर। डी फैक्टो लीडर कौन रहता है? डी फैक्टो लीडर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज द डी फैक्टो लीडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक आर इन वियना, ऑस्ट्रिया। बताया था अभी मैंने, बिकॉज दे वांटेड अ नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री टू होस्ट एंड फैसिलिटेट सच मीटिंग, सो वियना ऑस्ट्रिया ऑप्शन में है, 1965 में चूज किया था वहां पे हेडक्वार्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि यूएई ने ऑफिशियली कब ओपेक ज्वाइन करा? इनिशियली एज अबू धाबी, दे हैव जॉइंड इट लेटर इन 1960s, आपको पता था। लेटर कब? इन 1967। ओके, इन 1967, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अगला पैसेज है ब्रिक्स के बारे में। अब इंडिया चेयरमैनशिप एंड मेंबरशिप, ये डीडी न्यूज का आर्टिकल है ब्रिक्स का। अब जहां पर आप ब्रिक्स देख रहे हो तो वहां पर आपको ब्रिक्स नेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में डिस्कशन हो रही है और इंडिया चेयर है ब्रिक्स का, ये बात यहाँ पर हो रही है आपकी। इनके अलावा भी और भी मेंबर्स हैं जिनके बारे में सवाल आगे आएगा। पहला क्वेश्चन, इंडिया इज शेड्यूल्ड टू होस्ट व्हिच एडिशन ऑफ द ब्रिक्स समिट इन 2026? अच्छा, एक और चीज है कि जब ब्रिक्स फॉर्म हुआ था, सो इट वाज फॉर्म्ड एज ब्रिक, इट वाज फॉर्म्ड एज ब्रिक, राइट। साउथ अफ्रीका ज्वाइन लेटर, और ब्रिक जो टर्म है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जिम ओ'नील। Jim O'Neill, he coined this term. South Africa joined later. When South Africa joined, it was called as BRICS. ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है 19 की इंडिया शेड्यूल टू होस्ट विच एडिशन? ये है बेसिकली 18th ब्रिक्स समिट जो इंडिया होस्ट कर रहा है। कौन सी ईयर में? 2026 में। क्या इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है? नहीं, दिस इज द 4th टाइम दैट इंडिया इज होस्टिंग। पहला इंडिया ने करा 2012 में होस्ट, फिर करा 2016 में ब्रिक्स समिट होस्ट, फिर करा 2021 में, और अब कर रहा है 2026 में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, these are the years in which India hosted the BRICS summit. Simple. ठीक है, 17 BRICS summit किसने होस्ट की थी? 17 BRICS summit was hosted by Brazil. ठीक है, आपकी 16th वाली जो समिट थी, दिस वाज होस्टेड बाय रशिया, और अभी कौन सी चल रही है? 18 चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स इंक्लूडिंग द न्यूली एडेड मेंबर्स? टोटल अब आपके 11 हैं। ठीक है, 5 तो आपके पहले के ही ओरिजिनल 5, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके साथ साथ 6th इज इजिप्ट, 7th इथियोपिया, 8th ईरान, 9th यूएई, और 10th इंडोनेशिया एंड सऊदी अरेबिया 11, राइट। सो टोटल 11 मेंबर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, which of the following is not the 4 pillars of India's BRICS presidency 2026? Now we are a country who will not put militarization, right? Militarization we will not keep as one of our 4 pillars. हमारा क्या है? resilience है, innovation है, environmental sustainability है, और militarization नहीं है। हमारा क्या है? we have cooperation, right? ये 4 हमारे pillars है। It is the theme is officially what? Building for resilience, innovation, cooperation and sustainability, not militarization. ठीक है, चलिए, who coined the term BRIC in 2001?
क्वेश्चन पूछा है, किसने कॉइन करा था? जिम ओ'नील ने कॉइन करा था ब्रिक टर्म। रघुराम राजन तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, right? Jeffrey Sachs is basically somebody who is known for his sustainable development projects. Joseph Stiglitz is basically Nobel Prize winner in economist. So Jim O'Neill is the right answer. The first BRICS summit was held in which country in 2009? पहली ब्रिक्स समिट जो आपकी हुई थी वो आपकी हुई थी रशिया में, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, पहली ब्रिक्स समिट आपकी हुई थी रशिया में, एंड इंडिया ने पहली ब्रिक्स समिट कब होस्ट करी थी अपनी? इंडियाज फर्स्ट, अभी पीछे बताया था 2012 में, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रिक है, ब्रिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका जॉइंट लीडर इन 2010, ठीक है। So the group only became BRICS that when South Africa joined in which year? In 2010. I hope this is clear. The chairmanship of BRICS is rotated annually among member nations, decided by UN, shared by all members simultaneously. ये तो हो नहीं सकता, सारे मेंबर शेयर नहीं करेंगे। यूएन का कोई इसमें लेना देना है नहीं, बिकॉज इसमें सिलेक्टिव नेशंस हैं। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, दैट इट इज रोटेटेड एवरी ईयर। हर साल 31 दिसंबर को जो है टेन्योर खत्म होता है, राइट, एंड टेन्योर रन्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। द टेन्योर आपका बेसिकली इट रन्स ऑफ द BRICS, and no single country holds a permanent leadership, okay? And group किसको प्रमोट करता है? इक्वली, right, and not governed by UN or any other body. Clear है? चलिए, लास्ट पैसेज है अबाउट गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड, द यूसीसी बिल। ये आपका पैसेज है फ्रॉम द हिंदू, ये द हिंदू का पैसेज है आपका, एंड यहाँ पर लिखा है कि इन्वोकिंग द सनातन वैल्यूज एंड रेफरेंसेस फ्रॉम ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, right? The Gujarat Chief Minister on 24th of March described the Uniform Civil Bill as a step rooted in India's civilizational ethos of unity and equality as he introduced the legislation in the Assembly. Opening his address, the Chief Minister said India's ancient tradition emphasizes collective harmony, working together, speaking together, and being united in thought, principles reflected in the Rig Veda. He said the idea of a common legal framework flows from this very philosophy of the Rig Veda, where truth is one and justice must be uniform, irrespective of different religions and communities people come from. Placing the bill in a constitutional framework, he said it aligns with Article 44 and the vision of PM Modi's for Ek Bharat, Shresth Bharat. ठीक है, and termed its introduction a historic moment for the state. The proposed legislation mandates registration of marriages across all religions within 60 days. नहीं करा तो क्या होगी? 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी. Cases of forced, coerced, or fraudulent marriages as well as multiple marriages may invite punishment of 7 years. Right? So this is what Uniform Civil Bill आपका है. अब what is the primary objective? To separate personal laws from different religions? नहीं. To establish a common legal framework for all citizens irrespective of religion? हाँ जी, पैसेज में क्लियरली मेंशन है, ये आपका यूनिफॉर्म सिविल बिल है. To abolish marriage registration? नहीं भाई. To regulate inheritance laws only? No. Inheritance, marriage, divorce, live-in relationships, इन सबका यूनिफॉर्मिटी irrespective of the religion. ठीक है. अगला क्वेश्चन, what is the okay, so this is repeated. Okay, which constitutional provision provides basis for uniform civil code? सीधे पैसेज में है आर्टिकल 44. क्या कहता है आर्टिकल 44? It is located in DPSP's Directive Principle of State Policies. Constitutional instructions है for running a welfare state. और ये कहता है that the state shall endeavor to secure for all the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. और आर्टिकल 21 किससे है? Right to life and personal liberty. 32 is right to constitutional remedies, right? So 21 is right to life. Article 32 is right to
constitutional remedies, or Article 370, temporary provision, the abrogation of, which was regarding the Jammu and Kashmir. It was abrogated in the year 2019. So ये हो गए. चलिए, question number 27. The Uniform Civil Code bill was drafted based on the recommendations of a committee headed by. इस कमिटी को हेड किया था सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जिनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई. ऑप्शन सी हियर. ठीक है. Question number 28 कहता है what happens if a marriage is not registered within 60 days under UCC bill? Marriage becomes invalid automatically? नहीं, कहीं ऐसा नहीं लिखा है. The marriage is cancelled? Absolutely not. पेनल्टी में अप्लाई? हाँ जी, 10,000 रुपए की पेनल्टी अप्लाई होती है अगर नहीं होगा. कपल लूजेस इनहेरिटेंस, राइट? एब्सोल्युटली नॉट, राइट. 10,000 रुपए की पेनल्टी है अगर 60 डेज में नहीं करा तो. इट्स अ फाइनेंशियल पेनल्टी. और मल्टीपल मैरिज का देखा गया तो अप टू 7 years ऑफ पनिशमेंट. क्वेश्चन नंबर 29. Which group has been exempted from the provision of the Uniform Civil Code bill? Religious minorities नहीं, senior citizens नहीं, women beneficiaries नहीं, scheduled tribes under Article 33, 66, 25, right? So basically tribal communities जो हैं वो इसका पार्ट नहीं है. It is exempted from that. And the last question, which of the following subjects are covered under UCC bill? मैरिज एंड डिवोर्स ओनली नहीं, इनहेरिटेंस के बारे में भी है. इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन नहीं. इट इज अबाउट मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड लिव इन रिलेशनशिप्स. यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सारे में है और अभी कहाँ पे है आपका? गुजरात में आपका इम्प्लीमेंट किया गया है. सो दिस वाज अबाउट द पैसेज. सो हियर वी हैव कवर्ड ऑल द 5 passages. सारे passages कर लिए, सारे questions हमने कर लिए. पहला passage आपका था that was about women reservation, right? पहला passage was about women reservation, 33%, right? दूसरा passage जो था आपका वो था आपका आर्टेमिस मिशन के बारे में. तीसरा passage जो था वो आपका था ओपेक और यूएई के एग्जिट के बारे में, right? Fourth passage was about BRICS, India's chairmanship, और fifth passage was about UCC bill in Gujarat. So ये आपके हमने कुछ top 5 passages we have covered in this class, and I hope you have understood that how you can go about a passage. Even if you don't know the answer, you can still very much come on to to the point where you can at least eliminate some of the options, right? And thank you so much for staying tuned with us till here, and I hope you have a great day. Thank you.